اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج عید کا دوسرا دن ہے، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ جنہوں نے قربانی کیا اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس میں جو کوتاہیاں یا غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے۔ جنہوں نے حج کیے ہیں اللہ سب کے حج قبول کرے، وہاں مانگی گئی تمام دعائیں قبول کرے، اور اللہ آپ سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ جی میرے آج کے موضوع انتہائی اہم ہیں، جس کی وجہ سے مجھے عید والا کل میں نے نہیں کیا تھا ولاگ، آج عید کا دوسرا دن ہے، آج اپنی ڈیوٹی پہ شروع ہو گیا ہوں۔ تو دیکھیں اس وقت ملک میں ڈالر نہیں ٹھہر رہے ہیں، ڈالر گورنمنٹ جتنے بھی مارکیٹ میں ڈالتی ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب 4 گروہ پکڑے گئے ہیں، 4 جگہ سے 4 اڈے پکڑے گئے ہیں جہاں سے پورے ملک سے ڈالر اکٹھے کر کے تو افغانستان سمگل کر دیے جاتے تھے۔ ان اڈوں کا مالک کون تھا اور کون چلا رہا تھا، آپریٹ کون کر رہا تھا، کس طریقے سے یہ ڈالر سمگلنگ ہو رہے تھے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر آٹا اور چینی، یہ 2 چیزیں بھی یہاں سے سمگلر ہو رہی تھی، وہ سمگلنگ میں ملوث لوگ بھی پکڑے گئے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے، یہ ہمیں عید کا تحفہ ملا ہے۔ اب انشاءاللہ یہاں پہ نہ صرف گندم سستی ہوگی بلکہ انشاءاللہ ہر چیز بہتر ہو جائے گی، ہر نظام بہتر ہو جائے گا۔ یہ سب اللہ کی کرم نوازی سے ہو رہا ہے، اللہ غیب سے مدد کر رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ 80 پلاٹوں والا ایک جرنل گرفتار ہو گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اگر 80 پلاٹوں والا جرنل گرفتار ہو سکتا ہے تو پھر بچے گا کوئی بھی نہیں۔ اب اس وقت جو ہمارے چیف آئے ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے کوئی تفریق نہیں رکھی ہے۔ اب اگر غریب لوگ روئیں کہ بھائی نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو یہ ظلم ہوگا، آپ لوگوں کے بچوں نے جو کرتوت کیے ہیں اس کے وہ ان کے اعمال بھگتیں گے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں خود تباہ کی ہیں، خود خراب کی ہیں ایک مردود کے پیچھے لگ کے۔ اس وقت آپ لوگ ان کو روکتے نا، میں تو ہر ولاگ میں روکتا تھا، میری ہی مان لیتے، چلو ماں باپ کی نہیں مانتے ہیں، ایک 75 سال کے بزرگ کی مان لیتے، نہیں مانی۔ تو اس میں کھل پہ کے بات ہوگی اور کوشش ہوگی کہ ولاگ چھوٹے سے چھوٹا بنایا جائے، کیونکہ عید کے دن ہر بندہ مصروف ہے۔ تو اور پشاور میں نائٹ کلب چل رہے تھے، KPK میں نائٹ کلب چل رہے تھے، کون چلا رہا تھا اور کس طرح وہ پکڑے گئے ہیں، ان کو اب سیل کر دیا گیا ہے الحمدللہ، اس پہ بات ہوگی۔ اور عمران نیازی عالمی طاقتوں کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ اب تو کھل کے وہ کہنا شروع ہو گیا کہ امریکہ اور جو ممالک مجھے استعمال کرتے رہے ہیں وہ مجھے بچانے کے لیے اب آئیں آگے۔ یہ دیکھیے چند دن اور گزرنے دیں، اس نے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ملک اور یہ بندہ مجھے استعمال کر رہا تھا۔ یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کا، مان لو، اب یوتھیو تم بھی مان لو کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ سب سے پہلے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی میں ہی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، عارف نظامی صاحب کے انڈر میں۔ تو اس وقت لوگ باذوق تھے، پرنٹ میڈیا کا دور تھا، تو لوگ اتوار کا انتظار کرتے تھے کہ میرا داریہ آئے گا تو وہ پڑھیں گے۔ اب تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور پرنٹ میڈیا کا تو دور ہی ختم ہو گیا، اب الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے دور میں میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میں ان کی زبان نہیں بولتا تھا، میں اپنی زبان بولتا تھا، تو اس لیے مجھے کوئی بلاتا ہی نہیں تھا۔ تو اب اللہ کی کرم نوازی سے یہ چینل اللہ نے دیا ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے۔
اور اللہ کی امانت ہے سمجھ کے میں اس میں وہی ویلاگ کرتا رہتا ہوں جس میں حق سچ ہو. اتنی سی بات ہو تو اتنی سی بتاتا ہوں، اس کو اتنا نہیں کرتا ہوں. تو اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں یہ کس طریقے سے، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. جو مہمان آئیں گھر میں عید والے دن ان سے بھی سبسکرائب کروائیں اور ان کو بھی بتائیں کہ یہ چینل واحد چینل ہے جو آپ لوگوں کو وہ خبر 3-4 دن پہلے یا ہفتہ پہلے بتا دیتا ہے جو ہمارے میڈیا نے ہفتہ بعد دکھانی ہوتی ہے، اور بعض تو دکھاتے بھی نہیں ہیں. وہ جو عالمی طاقتوں کے آگے ڈالر وصول کیے ہوئے وہ کب دکھائیں گے آپ لوگوں کو؟ یہ میں دکھاؤں گا یا میرا چینل دکھائے گا انشاءاللہ. تو باقی جو ہے نا یہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے. اور اچھا یہ میری ایک ہی اپیل آپ سب سے کہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے. زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں. 24 گھنٹوں میں اگر آدھا گھنٹہ ٹائم نکال لیں یا گھنٹہ ٹائم نکال لیں نا، جس دن بہت ضروری ہوتا ہے تو گھنٹہ ہوتا ہے ورنہ آدھا گھنٹہ، اس میں 10 منٹ کی تو دعا ہوتی ہے، خالی آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں. اور اس کے علاوہ دیکھیں کس طریقے سے یہ کوشش کیا کریں کہ اسکپ نہ کیا کریں، پوری ویڈیو دیکھا کریں اور گروپوں میں شیئر کر دیا کریں. اور باقی میری بھی دل سے دعا ہے کہ جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے، لائک کرتا ہے، کمنٹس کرتا ہے، گروپوں میں شیئر کرتا ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کی دنیا میں بھی بہتری ہو اور آخرت میں بھی بہتری ہو، اس کی تمام مشکلیں آسان ہو، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو. ان سفید بالوں کی اللہ سنتا ہے اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا. تو اس کے علاوہ جو ہے نا جو نہیں سبسکرائب کرتے ہیں ان کا بھی اللہ بھلا کرے، ان کو اللہ توفیق دے اچھے کام کرنے کی، نماز روزوں کی پابند رہنے کی. اور اس کے علاوہ دیکھیں اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کروائیں، رشتہ داروں سے کروائیں، دوستوں سے کروائیں، اور سب کو بتائیں کہ یہ واحد چینل ہے جو حق سچ کی آواز ہے، حق سچ دکھاتا ہے. اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کریں اور خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں. تو کس طرح ہمارے ملک کو 75 سالوں میں تباہ کیا گیا. اب آ کے دیکھیں 75 سالوں میں کوئی فیکٹری کارخانہ یہاں پہ نہیں لگنے دیا کہ ہمیں ان عالمی طاقتوں نے بھیک مانگنے کے لیے رکھا ہوا تھا پوری دنیا میں. کون کون سی تھی؟ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا. ان تینوں مردودوں نے مل کے ہمیں شروع 75 سال تک اس طرح بھیک مانگنے پہ لگایا ہوا تھا. اور بھیک بھی تو نہیں دے رہے تھے، قرضے دے رہے تھے، قرضے ہمارے اوپر چڑھا رہے تھے، ہمیں نیچے دبا رہے تھے. ہم قرضوں کے نیچے ایک ایک بال ہمارا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ ان مردودوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا. تو کوشش کریں کہ جو ہے نا اب اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں، اور میرے بارڈر پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے جوان ہیں ان سب کو بھی میری طرف سے عید مبارک. اپنے آرمی چیف کو عید مبارک، ISI سربراہ کو عید مبارک، چاروں کور کمانڈروں کو عید مبارک. اس کے علاوہ چیئرمین نیب کو، نیب کی پوری ٹیم کو عید مبارک، FIA کے انچارج سمیت پوری ٹیم کو عید مبارک، اینٹی کرپشن کے انچارج سمیت پوری ٹیم کو عید مبارک. کیونکہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے. بس اسی طرح ایمانداری کے ساتھ کام کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد 2 سال کے اندر اندر ہمارا ملک اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں پہ جو جال بچھ رہا ہے نا کارخانوں اور فیکٹریوں کا، وہ بہت فائدہ دے گا. ہماری آنے والی نسلیں بھی یقین جانیے اس سے فائدہ اٹھائیں گی. تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. دیکھیں گورنمنٹ نے بے تحاشا کوشش کی. جیسے ہی ڈالر ڈالتے ڈالر کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا. ہمارا روپیہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ڈالر مل جو نہیں رہا تھا.
हमारे जो एक्सपोर्ट करने वाले इंपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले, उनको डॉलर नहीं मिल रहे थे। जो हमारे मुल्क के लिए सरमाया लेके आते हैं, यहाँ से चीज़ें बाहर भिजवा रही थी, उनके लिए भी डॉलर नहीं थे। इतनी शॉर्टिंग हो गई थी डॉलरों की। तो अब वो टोटल चार ग्रुप थे पूरे मुल्क में, चारों सूबों में 4 ग्रुप थे, जो कि इकट्ठा करके ना ब्रांचें इनकी करोड़ों में थी, करोड़ों में, यकीन जानिए हर शहर में ब्रांच मौजूद थी। ये 4 सालों में पूरा नेटवर्क इमरान के दौर में फैलाया गया, मुल्क को तबाह करने के लिए, मुल्क में बदहाली फैलाने के लिए। और उसके बाद ये देखें किस तरीके से हुआ है कि चारों के चारों, अच्छा पूरा कलेक्शन होके ना तो KPK में पहुंचाए जाते थे ये डॉलर। तो वहाँ पे वो जो मरदूद बैठा हुआ था ना वज़ीर आला KPK का, वो और अली अमीन गंडापुर, शहरयार अफरीदी, पिनकी पीरनी और इमरान नियाजी, ये मालिक थे इन अड्डों के, ये पार्टनर थे, हिस्सेदार थे। ये वहाँ से इकट्ठा करके तो ये सारे का सारा पैसा, डॉलर जितने भी होते थे ना, सब डॉलर अफ़गानिस्तान स्मगल कर देते थे। सलूट पेश करता हूँ अपनी एजेंसियों को कि उन्होंने पकड़ लिया है पूरे का पूरा नेटवर्क। अब इंशाअल्लाह उसमें भी इस्तेहकाम आएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद के साथ डॉलर भी एक जगह पे ठहरेगा, बल्कि ना सिर्फ ठहरेगा बल्कि नीचे आएगा, दिन ब दिन नीचे आएगा। और इसके अलावा जो है ना, देखें आटा और चीनी, आटे के मज़ीद रेट बढ़ गए हैं, ये रेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। चीनी 130 पे चली गई है, मज़ीद महंगी होती जा रही है। इसका भी उन्होंने नेटवर्क पकड़ लिया है, ये भी नेटवर्क चला रहा था। अच्छा ये देखें KPK का जो था ना वज़ीर आला, वो सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करता था ये डॉलर सरहद तक पहुंचाने के लिए, अफ़गानियों के हवाले करने के लिए रास्ते में, ताकि कोई एजेंसी, सरकारी गाड़ी को तो कोई भी एजेंसी नहीं रोकती है, वो होटल बजाती हुई जा रही होती हैं कि भाई बहुत कोई इमरजेंसी में जा रहा है या कोई अफसर जा रहा है, काले शीशे होते हैं उनके, तो वो डॉलर भर भर के तो वो लेके जा रहे थे। और हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी इनकी स्पीड तेज़ हो गई थी, तो वही सरकारी गाड़ियां जो इन्होंने जमा नहीं करवाई थी वो अब जाके पकड़ी गई हैं वो गाड़ियां, और डॉलरों से भरी हुई पकड़ी गई हैं। कितना डॉलर पकड़ा गया उन गाड़ियों में? 1.5 अरब डॉलर, 1.5 अरब डॉलर पकड़ा गया है। इससे आप अंदाज़ा करें कि एक दिन में 1.5 अरब डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा था, तो यहाँ क्या बचना था? यहाँ पे तो हम ढूंढ रहे थे, हमें डॉलर नज़र नहीं आ रहा था। तो किस तरह हमारे मुल्क को तबाह किया जा रहा है। और इसके अलावा अब दूसरा नेटवर्क पकड़ा गया है, उसमें भी ये शहरयार अफरीदी, अली अमीन गंडापुर और पिनकी पीरनी और इमरान नियाजी, ये चारों शामिल थे। चीनी और आटा अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रहा था, और किस तरीके से हो रहा था? ये खच्चरों पे लाद के ना तो पहाड़ों के ज़रिए हो रहा था, मेन रास्तों पे वो नहीं जा रहे थे, पहाड़ी रास्तों से जा रहे थे ताकि पकड़े ना जाए। तो क्योंकि ऐसे ऐसे खुफिया रास्ते हैं कि जो एजेंसियों को भी नहीं पता है, यकीन जानिए वो अफगानियों को या ये पाकिस्तानी पठानों को पता होते हैं, इनके खुफिया रास्ते होते हैं। उन रास्तों से आटा चीनी खच्चरों पे लोड कर करके ना पूरे तोड़े चीनी के और आटे के पूरी बोरियां जो है ना और थैले जो है ना ये स्मगलिंग किए जा रहे थे अफगानिस्तान। वो भी अब नेटवर्क पकड़ा गया इंशाअल्लाह। अब आस्ता आस्ता आटा भी नीचे आएगा और चीनी भी नीचे आएगी। तो अब भी पाकिस्तानियों संभल जाओ, सोचो ज़रा है कि कौन बंदा था जो अपने ही अवाम को भूखा रख के, ये उसके तो नानके हैं अफगानी, इमरान नियाजी के, ये पूरा उसी का ही नेटवर्क था ना। उसमें पिनकी पीरनी, इमरान नियाजी ये दोनों और शहरयार अफरीदी और अली अमीन गंडापुर शामिल थे। शहरयार अफरीदी खुद तो जेल में चला गया, लेकिन उसका पीछे जो नेटवर्क था वो काम कर रहा था। अब वो नेटवर्क भी पकड़ा गया है। तो इस पे बात ये देखें किस तरह पकड़ा गया है। अच्छा एक और चीज़ बड़ी ख़तरनाक पकड़ी गई है कि देखें
75 सालों की तारीख में 75 सालों में शराब के कितने परमिट जारी हुए थे? 17 परमिट जारी हुए थे। 17 जिसको कहते हैं ना, वो जारी हुए थे। तो अब ये 4 सालों में इमरान नियाज़ी ने और बुज़दार ने और पिंकी पीरनी ने, फराह गोगी ने मिल के 750 शराब के परमिट जारी किए हैं। उनकी भी इंक्वायरी शुरू हो गई है और 5-5 करोड़ रुपया एक एक परमिट का वसूल किया है। इससे आप अंदाज़ा करें कि किस तरह मुल्क को तबाह किया जा रहा था। तो बाकी जो है ना, इसके अलावा जो है ना, नाइट क्लब बना दिए गए थे नई नस्ल को तबाह करने के लिए। ये जो दूसरे ममालिक में रहते हैं ना, उनको तो पता है नाइट क्लब क्या होते हैं, तो पाकिस्तानियों को नहीं पता। तो मैं बता देता हूँ कि नाइट क्लब में हर वो बुरा काम किया जाता है जो कि इस्लाम मना करता है। ज़ना उसमें किया जाता है, शराब उसमें पी जाती है, जुआ उसमें खेला जाता है, डांस उसमें किया जाता है। अब पता नहीं कपड़े पहन के करते हैं या नंगा करते हैं, या अल्लाह ही बेहतर जानता है, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ होता था। और वो अब नाइट क्लब भी बंद कर दी गई। ये इफ्तिताह पेशावर से किया गया था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये जाहिल मरदूद जो भटके हुए पठान है ना, ये अब भी उसके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि ये भटके हुए हैं, अय्याश टाइप लोग हैं। ये वो नस्ल है कि जो अपनी माओ बहनों का भी सौदा कर देते हैं। ये मरदूद ही वहाँ जाके गरीब बच्चियों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते थे। गरीबों के घरों की बच्चियों को बरगला के नौकरी के चक्रों में एक मरतबा उस धंधे में डाल देते थे, फिर बाद में वो खुद ही पैसा दे के उसमें शामिल हो जाती थी। पैसा तो इसमें बुरे कामों में बहुत होता है ना। तो उसके बाद फिर क्या होता था, ये कॉलेजों की स्कूलों की लड़कियां, इनको बरगला के उनमें पूरे ग्रुप बनाए हुए होते थे, उनको लाया जाता था। और इसके अलावा एक और किया जा रहा था, ये इसमें भी ये चारों शामिल थे, शेरियार अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, पिंकी पीरनी और इमरान नियाज़ी। ये स्कूलों में, कॉलेजों से अफ़गानिस्तान में आइस का कोई नशा है। मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं, सिर्फ नाम सुना है कि आइस को नशा है। तो आइस को ला के ना, तो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की बच्चियों और बच्चों को पहले फ्री तकसीम किया गया। इनके अंदर पूरे ग्रुप मौजूद हैं, वो इनको पहले फ्री पिलाते रहे, और बाद में अब तकरीबन हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में 50% से ज़्यादा बच्चियां और बच्चे नशे पे इन 4 सालों में लगे हैं। अब उनके इलाज हो रहे हैं। अब उनको ये कोई चैनल आपको नहीं बताएगा, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से मुल्क को तबाह किया जा रहा था, हमारी नई नस्ल को तबाह किया जा रहा था। उनको कोकीन पे, आइस पे और पाउडर पे, चरस पे लगाया जा रहा था। और इसके अलावा नाइट क्लब बनाए जा रहे थे। शराब के परमिट धड़ाधड़ जारी हो रहे थे। 4 सालों में 750 परमिट जारी हुआ है, जबकि 75 सालों में सिर्फ 17 परमिट जारी हुए थे। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि नई नस्ल को, इसको क्या मिशन यहूदियों ने और कादियानियों ने दिया था नई नस्ल को किधर लगाने का। ये अपना मिशन पूरा कर रहा था, कामयाब भी हो जाता, लेकिन वो ज़ात पाक जो ऊपर बैठी हुई थी ना, उसने करम किया है, उसने हमें बचा लिया है, और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से आगे भी वही बचाएगा। और इसके अलावा जो है ना, हाँ, अब आप आ जाएं जनाब, बहुत ज़बरदस्त खबर, कोई चैनल आपको नहीं बताएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बंदा पकड़ा गया है जिसने इस पे लतीफ़ खोसा के घर में फायरिंग की थी। ये जो वकील है इमरान नियाज़ी का, जो आलमी ताकतों का एजेंट है, वो भी, और उसी को ही उसके घर में, उसके बाद फिर एतजाज़ हसन के घर में फायरिंग करवानी थी, और दोनों को ऊपर पहुंचा के नाम किसका लगाना था, पाक आर्मी का। और अभी देखे सिर्फ लतीफ़ खोसा के घर में फायरिंग हुई तो क्या हुआ है कि फायरिंग करके वो
भाग गए। मोटरसाइकिलों पे 2 लड़के थे। पुलिस फौरी तौर पे पहुंची और उन्होंने सलूट पेश करता हूँ उस टीम को मैं, उन्होंने फ़ौरन 1 सेकंड का इंतज़ार किए बगैर वो उनके घर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे ना, उनका वो बक्स ही उठा के ले गए उधर अपने लेबॉर्ट्री में। वहाँ जाके उन्होंने जब सर्च किया, दोनों के चेहरे साफ नज़र आ रहे थे। उन्होंने फौरी तौर पे जो उसका किंग है ना, उसका नाम है जनाब एक मिनट में अभी बताता हूँ, मोहसन उर्फ लंबा नाम था, और उसके साथ जो दूसरा शामिल था उसका नाम काशिफ था। ये मोहसन उर्फ लंबा को सीसीटीवी कैमरों की मदद से अरेस्ट किया गया, ये अरेस्ट हो गया और काशिफ अभी तक फरार है। और ये मोहसन लंबा कौन है? ये वो उजरती कातल है। ये 100 से ऊपर 100 से प्लस कत्ल कर चुका है। लाहौर का है और लाहौरिया है, और ये 100 से ऊपर कत्ल कर चुका है। तो ऐसे लोगों उसके देखें, इमरान नियाज़ी का ताल्लुक था, ये बैक पे इसके इमरान नियाज़ी था। अच्छा, जब मोहसन उर्फ लंबा को पकड़ा गया, पुलिस ने लितरौल लगाई ना, तो उसने नाम बताया, पुलिस के लितरौल के आगे बड़े बड़े बोल पड़ते हैं, तो उसने नाम बताया कि मेरे साथ 10 लाख में सौदा तय हुआ था कि मैंने इन दोनों के घरों में फायरिंग करनी है, और उसमें मेरे साथ काशिफ भी था। तो अब जिस बंदे का नाम इन्होंने लितरौल खाने के बाद नाम बताया ना, उसका नाम है जनाब ज़ुबैर नियाज़ी। ज़ुबैर नियाज़ी भी जुओं के अड्डे चलाता है, करप्ट तरीन बंदा है ये। उसका ताल्लुक डायरेक्ट, जब उसको लितरौल हुई तो उसने डायरेक्ट बता दिया कि भाई मुझे तो इमरान नियाज़ी ने कहा था कि इस तरह बंदों को इन दोनों के घरों में फायरिंग करवाओ। और उसी दिन देख लें, इमरान नियाज़ी मीडिया पे आके ना, मीडिया पे तो खैर पाबंदी है, उस पर अपने यूट्यूब के चैनलों पे आके शोर डाल रहा था। वो जो बाहर बैठे हुए उसके चमचे कटचे हैं ना, उनको बता रहा था कि देखें जी, हमें तो वकील भी, हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है कि हमारे तो वकीलों के भी घरों में फायरिंग करवाई जा रही है। और कौन करवा रहे हैं? ये हमारे एजेंसियों के लोग करवा रहे हैं, और हमारे जो है ना ये आर्मी के लोग करवा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहा था। लेकिन वो अल्लाह की ज़ात पाक ऊपर बैठी हुई है ना, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। उसने ऐसा इंसाफ किया है ना कि यकीन जानिए कि इसी का ही वो लपेट के इसी के मुंह पे मार दिया है, इसके झूठ को, जिसको ये सच साबित करना चाह रहा था। वो पकड़ा गया है, ज़ुबैर नियाज़ी पकड़ा गया है, काशिफ फरार है। काशिफ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएगा ना, सॉरी, ज़ुबैर नियाज़ी भी फरार है। लेकिन ज़ुबैर नियाज़ी जो है ना, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है इसके साथ है, इमरान नियाज़ी के साथ, क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात में भी मुलव्वस था। और ये जो उसमें उधर मियाँ वाली में जो जहाज़ जलाने थे ना, उन्होंने एयरपोर्ट पे हमारे JF थंडर जहाज़ खड़े थे, उनको जो उन्होंने जलाना था ना, उनका प्लान उनको जलाने का था। लेकिन आर्मी ने बर वक्त इक़दाम किया, एयरफोर्स ने बर वक्त हिफाजती इक़दाम किए, तो वो बच गए। तो एयरफोर्स को सलूट पेश करता हूँ। आर्मी के जिन जवानों ने, अफसरान ने गफलत की थी, वो अब भुगत रहे हैं। वो अंदरूनी खाना मिले हुए थे ना आलमी ताकतों के साथ, इमरान नियाज़ी के साथ, ये सब एक ही थे, इसीलिए तो उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया था। तो देखिए किस तरीके से ये इन पे किया गया है। तो अब मैं ये सब मालूमात आप तक पहुँचाई है, इंशाअल्लाह कल इससे भी बेहतरीन मालूमात इकट्ठी करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो ठीक है, आज का व्लॉग मैंने कम करना था, दुआ भी आज इंशाअल्लाह मुख्तसर करूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा, जो भी कोई नेक इरादा हो, कबूलियत का दिन है, जीत का दूसरा दिन है, तो वो दिल में रखें और हाथ खड़े करके आमीन आमीन बोलते जाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार वादा शरीक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा और पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा और पाकिस्तान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े क़यामत तक कायम व दायम रख और सी पैक बनने में, सी पैक बनाने में या अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा। और सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वादर में बन रहा है, उसको कंप्लीट होने में गैप से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। और या अल्लाह ये जो मरदूद बिके हुए जज हैं या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह, चाहे वो हाई कोर्ट में है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में है, चाहे सेशन कोर्ट में है, चाहे निचली अदालतों में है, या अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमा। अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो फिर इनको इनकी फैमिलियों समेत तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा, मेरी ज़िंदगी भर की कोताहियों और गलतियों को माफ़ फरमा, हम सब की गलतियों और कोताहियों को माफ़ फरमा। और या अल्लाह खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा। या अल्लाह सैयद आसम मनीर साहब की हिफाजत फरमा, आर्मी चीफ समेत तमाम अदारों के अफसरान की हिफाजत फरमा और उनके जवानों की हिफाजत फरमा, इनके साथ काम करने वालों की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह जिन लोगों ने या अल्लाह जो भी बीमार हैं घरों में, अस्पताल में, सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। और या अल्लाह जो ताकतें पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करना चाहती हैं, तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन ताकतों को तबाह व बर्बाद फरमा और उनको अपने खुसूसी करम से खुसूसी रहम फरमा मुल्क पाकिस्तान के ऊपर। और या अल्लाह उन आलमी ताकतों को तबाह कर दे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दे जो मुल्क पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह जिन्होंने भी या अल्लाह जो घरों में अस्पतालों में बीमार पड़े हुए हैं, या अल्लाह उन सबको शफाए कामिला अजला अता फरमा, उन सबको सेहत वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह जिन बच्चियों ने औलाद के लिए कहा, मेरी उनके हाथ में दुआ कबूल फरमा, उनको अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। जिन बच्चियों की शादी की उम्र हो चुकी है और उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह उन सब के अच्छे नेक लोगों में रिश्ते करवाने में गैब से उनके वालिदैन की मदद फरमा। और या अल्लाह उन बच्चियों को शर्म व हया वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनकी शादियों में आसानियाँ पैदा फरमा। और या अल्लाह जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा। और या अल्लाह खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह ख़ास तौर पे या अल्लाह जो भी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, चाहे किसी भी इदारे में बैठा हो, किसी भी एजेंसी में बैठा हो, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनको या तो हिदायत नसीब फरमा, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो फिर उनको तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह जितने भी हमारे बच्चे परदेश में अपनों से दूर रह के ईदें मना रहे हैं, या अल्लाह उन सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह सी पैक के बाद इन सब बच्चों को पाकिस्तान में अच्छा रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह सी पैक बनाने में दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह ख़ास तौर पे या अल्लाह जो मुल्क पाकिस्तान के बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, उनकी फैमिलियों को अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रख। और या अल्लाह इन बच्चियों के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। और या अल्लाह इन बच्चों को हिदायत नसीब फरमा कि वो बैंकों के ज़रिए पैसे भेजें, हुंडी के ज़रिए ना भेजें। और या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह हमारे आर्मी चीफ सैयद आसम मनीर साहब को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह हम सब के ऊपर खुसूसी करम फरमा, रहम फरमा, हम सब की ख़ताओं को, गलतियों को, कोताहियों को माफ़ फरमा।
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔